वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी यूनिट, हम अभी यूनिट नहीं दे रहे हैं, तो हमको पता कैसे चलेगा कौन सी यूनिट पे काम कर रहे हैं। अब जब प्रिंट आउट लेंगे कौन सा यूनिट में आएगा। इन फैक्ट इफ यू विल सी टेक्निकली ऑटोकैड इज ए यूनिटलेस सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड इज ए यूनिटलेस सॉफ्टवेयर। आप अगर 1 mm दोगे जितना लेंथ होगा, 1 MCM दोगे उतना ही ये होगा, 1 मीटर दोगे उतना ही होगा। बट द थिंग इज दैट इफ यू विल सेट द यूनिट, जब आप प्रिंट करने जाओगे वो स्केल पे आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे यूनिट भी सेट करना है एंड इवन यू नीड टू स्पेसिफाई द स्केल ऑल्सो। वो जब प्रिंट कमांड पढ़ाएंगे हम लास्ट क्लास में, उस वक्त बताएंगे कि कैसे सेट करना है। वो स्केल के हिसाब से अगर आप प्रिंट निकालोगे, if you will just take a print out with scale, then accurately if you will just measure in scale you will get the same value. But at first you should make a practice that before starting any drawing you should set your unit, so that it will help us during printing to scale out it. Okay, for unit command the command is un enter. The command is un enter. The first two letter of the unit word is the command line for unit. Or you will get the same command under format menu bar. If you will just click on the format menu you will get the units. Get it? Now you can see somehow maximum options under format unit are followed by 3 dots. Can you see this? बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं जो 3 dots आगे लगाया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इवन अंडर टूल देखोगे, हाँ यहाँ पे कुछ है, समहाउ यहाँ पे कुछ 3 dots हैं। That means these are called the fly out menu. These are called fly out menu. Simply FLYOUT, fly out menu. Okay, ये fly out menu का मतलब क्या होता है? So fly out menu means whenever you will click on those options, so it's called fly out, sorry, menu. So fly out menu means if you will click on those options, you will be provided with another extra window on screen. An additional window will be displayed on your screen in order to specify different parameters. Once you will define all the parameters, then it will be set. So now see, agar format menu ke under mein, if I will click on the unit command, it will open with the drawing unit window. Done? Now you can see the left side, it is given with the length option. Right side, it's given with angle option. Okay, first we should go with the length option. Now the first one is your type. What should be your length type? Whether it is in foot and inches, whether it is a centimeter or whatever it is. If you will just click on browse this, you will get architectural type, decimal type, engineering type, fractional type, and scientific type. So normally in mechanical, we should follow the decimal type, which will give you millimeter values. Even nowadays, engineering means civil engineering also, they are also using the millimeter. Otherwise, if you want to work in foot and inches, you can go to the engineering. See, it will come with the foot and inches. Now, let me go with the decimal only because we are going to do some mechanical drawings which are in millimeter normally. Now, what should be the precision? What should be the precision? It might be quite difficult or it's impossible to draw a line of 4 digit or 3 digit with a scale. If I will tell you, okay, you should draw a line with a length of 10.155. Okay, 10.1 you can do. Even 10.15 also you have to do it approximately. You can't draw it exactly. And I'm talking about 10.155, 3 decimal, up to 3 decimal. So it is highly impossible. Okay, but in AutoCAD it is possible. So you should have to define the precision. You can see up to 8 or 9 decimals, it is possible to create any length. But again, these are not feasible. If you will go up to 3 decimal, it is the maximum feasible value. Q. Now the most highest
प्रिसिशन कंपोनेंट्स इन द वर्ल्ड, जो कि हम बात करेंगे अगर एरोनॉटिक्स पार्ट्स जो हो गया या फिर सैटेलाइट कंपोनेंट्स हो गए, उसका भी बात करेंगे. दे आर विथ प्रिसिशन ऑफ माइक्रोन्स. Microns in the sense 1 mm is equal to 1000 micron. 1 mm is equal to 1000 micron. So might be we have to work with 5 to 10 micron. If I am talking about 5 micron, then it is 0.005. 0.005 mm. So its maximum 3 decimal is feasible, or realistic value is there. These are options are there. So I don't think that these are having any uses. So up to this you can use in real time. Or if you want to go for 0, it's okay. 10. If you want to go for only 1 decimal, it's okay. So you need to choose it. I will go with the 2 decimal only. Next, what should be your insertion scale? As I have defined it in decimal, it should be come with millimeter. See, AutoCAD is not generally not an intelligent software, so you need to define each and everything. But if you will go for any high-end software like Creo, CATIA, or Pro, means that SolidWorks, they are having their own unit system, MKS, CGS. If you will take MKS, then automatically it will take you to those respective units. Okay, like that only. But here you have to set the units accurately with every parameters. Okay. Now come to the lightning. Lightning in the sense it's a standard. In all over the world, there are 3 type of standards are in used. First, American standard. America and the following countries are used this American standard, and this is developed by the American one. Generic standard, which is developed by Germans. So German and following countries are using those generic standards, and in Asia most of the countries including India are using international standard. If you will click here, then you will got the all the thing, international, generic, and American. So American standard has been developed. As I told you, AutoCAD is having AutoCAD is just used all over the world, and they are having 14 languages version. So almost in all countries they have to use AutoCAD, so might be they have to follow all the standards. I will be back somehow when we will teach, means we will learn what are the projections are there. In that we will discuss all these things, what is the difference between them. Somehow I will not go deeply, but somehow we will discuss it. So it should be international standard. Default value is international only. Just keep as it is and just click on OK. Now your unit is set. Now you will ask, sir, you didn't tell about the angle. Okay, here angle is decimal degree. We are not using any precisions. आपने कभी यूज किया है आपने 30.5 का एंगल बनाओ? We are taking the whole number, right? And now this is the clockwise symbol. So normally what we are doing, जब भी हम एंगल कैलकुलेशन करते हैं, we should have to calculate anti clockwise. 0 degree, 60 degree, 30 degree, whatever you are calculating, that is anti clockwise. If you want to calculate it in clockwise, you just check it out. Otherwise you can keep it default and press OK. Now your unit is set for this particular file. So whatever you want to go, you just create, those will be with millimeter unit. So when you are going to take the printout, you can scale it out as accordingly. Done. Even I will show you something. If you will go to Control P, so print command is just for your purpose only. You can see here only this for your knowledge only. Later I will teach you in detail. See, 1 inches is equal to how much unit. So here we are working in units. So here you need to go for 1 millimeter. And here don't go with the fit to paper. And here you can go to the custom 1:1. You can see 1 millimeter is equal to 1 unit. So we are working here as unit, 10 unit, 5 unit, 15 unit, whatever it is. So it depends what is the unit you have set and how you are going to scale it out here. समझ में आया? Or any doubt is there?
अगेन आई No, एम sir. टेलिंग यू दैट मैंने अभी तक प्लॉट या प्रिंट कमांड बताया नहीं, सिर्फ जो कि यूनिट कमांड मैंने बताया और फिर बोला कि ऑटोकैड यूनिटलेस सॉफ्टवेयर है, उसको थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए आपको ये दिखा दिया थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे मे भी बोलेंगे कि हाँ ऑटोकैड में यूनिट है, बट यूनिट यहाँ पे कुछ काम नहीं है, बट यूनिट सेट इसलिए करना है ताकि हम बाद में उसको स्केल आउट कर सकते हैं। डन। Yes, sir. Okay, so next to that we should learn today some draw commands like arc. Already we have learned about circle and line. Let we will go with the arc command. So let before that we should understand what is an arc. So let I will take you to a paint file so that I can explain you. Okay, I think how many people have connected today? 8 people only. Chinu is there, Paras is there. One more person is absent, na? He already told that. Okay. So arc means it's a part of circle. Am I right? It's a part of circle. Now, as it is a part of circle, it should have a center point. It must have a center point. So let it is center point CP. If I will connect these 2 points or these 2 points, this is defined as its radius value from center to the these points. So maybe this will be your start point of arc. This will be your start point of arc, and this will be your end point of arc, or vice versa. Either if you will take it this as start, this will be your end point, any one. Now, if you will see, this will be your included angle, theta. This will be your included angle. Now, as this 2 point, now I am showing you this arc with these 2 points. Even the same way, I can draw a arc in this direction also with that 2 points. So maybe the center point will be here, and for this, maybe the center point will be here somewhere. But we can see any direction, this direction also, and this direction also we can create with these 2 points. Now, if I will just measure the displacement between the start point and the end point, this is called the only displacement. This is called the caudal length. What it is called? Caudal length. If you'll see the perimeter, then it's the arc length. It is called the caudal length. Now, as I told you, radius, center point, angle, end point, start point, caudal length, directions. These are various parameters are there in a arc. You will get it. If you will be given with any three parameter, if you will given with any three parameters, you can able to create an arc. So there are 11 options are there in order to draw an arc in AutoCAD. So let's go. First option will be 3-point option. If you will take any 3 point anywhere, you will able to create an arc. And the last option will be your continue. If you have any open profile अगर कहीं पे ड्रॉ करोगे, मीन सर्कल अगर बोलेंगे, सर्कल इज ए क्लोज प्रोफाइल, अगर लाइन या आर्क बोलेंगे, दोज आर द ओपन प्रोफाइल्स। तो लास्ट जो ड्रॉ हुआ होगा ओपन प्रोफाइल, वहां से कंटिन्यू होके एक कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, मैं दिखाऊंगा इसको। फर्स्ट एंड लास्ट लेट इट बी। रिमेनिंग जो 9 ऑप्शंस हैं, अब देख लो, पहला जो 3 ऑप्शन है, the first 3 options starts with start center. All the 3 options you can see start center, start center, start center. But at the end, the parameter is different. Start center end, start center angle, start center length. So sequentially, you have to specify those points and values. पहले start point देना है, उसके बाद center point देना है, then end point देना है. That based on your requirement. Start center length. Length is nothing but the caudal length. Even the symbol you can see. This is only the displacement between the start point and end point. Next 3 options are started with
start end, start end, start end, start end, start end angle, start end direction and start end radius. अब लास्ट थ्री जो है आप देखो ठीक से, ये स्टार्ट सेंटर से स्टार्ट हुए थे, ये सेंटर स्टार्ट से स्टार्ट हुए हैं, बाकी ऑल सीक्वेंस आर सेम. अब स्टार्ट सेंटर एंड, यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, सेंटर स्टार्ट एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, सेंटर स्टार्ट लेंथ, जस्ट ऑपोजिट. अगर आप कहीं पे भी लोगे 3 पॉइंट ऑप्शन, मेरे लिए ऑर्थो ऑफ है, कहीं पे भी 3 पॉइंट में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे वो हो गया. इवन अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे स्टार्ट एंड डायरेक्शन, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर ये करोगे यहाँ पे हो जाएगा. दिस आर वेरी सिंपल. इवन इफ यू गो टू एनी अदर ऑप्शन, सेंटर स्टार्ट एंड, दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, दैट्स इट. इवन आप कहीं पे भी ऑप्शन में जाओ, अभी कर सकते हो ये सभी. सर यस. सर जो आपने स्टार्ट सेंटर एंड और सेंटर स्टार्ट एंड, इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस में डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है. तो बस सर इसमें तो फिर ये दिए क्यों गए हैं, जबकि हम स्टार्ट सेंटर एंड से भी कर सकते हैं, सेंटर स्टार्ट एंड से भी कर सकते हैं. मैंने कल एक बात बताया था आपको, सर्कल करने के टाइम में मतलब सेंटर पॉइंट और रेडियस का ऑप्शन भी दिया है, सेंटर पॉइंट और डायमीटर का भी ऑप्शन दिया है. हाँ क्यों दिया है सर? अगर रेडियस देता तो हम लोग डायमीटर कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायमीटर दिया है तो रेडियस कैलकुलेशन कर सकते हैं. इट इज ओनली फॉर योर इजी पर्पस. आपके पास क्या गिवन है, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, तो ये सभी पॉसिबल ऑप्शन दिया गया है. ओके सर. मे बी आप 2-3 ही यूज करोगे, 4-5 ही यूज करोगे, बाकी सभी यूज मन नहीं कर सकते हो, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये सभी सीक्वेंस में आपको करना पड़े. मे बी जो डेवलप किए हैं, जो सोचे होंगे, कुछ तो सोच के किए होंगे डेवलप. सो आपके पास ड्राइंग में जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे ही दिया है गिवन, आप थोड़ा सा सभी को आप याद रख लेना, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना, या फिर दिमाग में रहने की आप क्लिक करोगे तो सभी ऑप्शंस दिखेंगे. अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस यू कैन चूज. अब हाँ, यहाँ पे स्टार्ट 2 पॉइंट है और यहाँ है, तो स्टार्ट एंड डायरेक्शन में चले जाएंगे. अब कंटिन्यू, जैसे मैंने बोला, अगर कंटिन्यू में जाओगे तो लास्ट जो आर्क ड्रॉ हुआ होगा, इट इज कंटिन्यू फ्रॉम दैट ओनली. Even if I'll draw a line also, and if I'll go with the continue option, then it will continue with that line only. So this is arc option. I hope you will get some drawings related to arc also in your workbook. Just do the practice. ये थोड़ा में मतलब छोटा छोटा चीजें हैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो. Still if you will have doubts, let me ask, let me check यहाँ पे है या नहीं arc के related. Yes, it's there. Can you see this? Three-point arc. See, you can draw a base of 100, you can offset it up to 50, and you can choose the points here. Start point, middle point, here end point. Here this is end point, middle point, here this is start point. See, start, center, end. Start point, center point, end point. Even आप यहाँ पे सर्कल करके भी उसको ट्रिम कर सकते हो. सर्कल करके भी ट्रिम कर सकते थे ना हम, बट स्टिल आप Yes, sir. कितना ज्यादा, आप देखना, मैं एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. आप एक ड्राइंग दिए हो, आपको दिया गया है, आप जितना ज्यादा टूल, जितना ज्यादा ऑप्शन यूज करोगे ना, उतना जल्दी ड्राइंग होगा. ऑटोकैड तो सभी सिखाते हैं, सभी सीखे भी होंगे, लाइन और सर्कल से ही सभी ड्राइंग खत्म है. लाइन, सर्कल, ट्रिम, ऑफसेट, ये कुछ 8-10 कमांड पढ़ लो, ऑटोकैड में कुछ भी ड्राइंग बना सकते हो आप. बट डिपेंड्स आपका प्रोडक्टिविटी क्या है. अब जो 1 घंटा लगा लेगा, घंटों लगा लेंगे वो लोग 8 कमांड से, आप अगर उसमें 20 कमांड लगा लो, मे बी वो काम आप 15-20 मिनट में कर सकते हो. दैट इज ओनली द थंब रूल जब आप कैड में काम करते हो. इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन कैड, देन थिंक अबाउट दिस. अदरवाइज एक्सेल जो सीखा है वो ऑटोकैड सिखा देगा. बट दैट मस्ट, यू शुड रिमेम्बर के एप्लीकेशंस, कितना ज्यादा टूल्स यूज कर सकते हो, एंड कोई भी डिजाइन मिले आपको, अप्रोच कहां से करना है, कैसे करना है.
मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूं, बट वो जो पर्सपेक्टिव है ना, आप कहां से देखोगे, कैसे अप्रोच करना है, दैट नीड्स योर मीन्स, आपको उतना प्रैक्टिस करना है। यू नीड टू गिव टाइम। दिस इज अ बेसिक ऑटोकैड, सबका बेसिक ऑटोकैड ही है। अब जितना हाई एंड सॉफ्टवेयर में जाओगे, फंडा यही है। डन। ये सभी आप कर लेना, Yes, sir. मैं ये दिखाऊंगा नहीं। आई होप यू कैन डू इट। अगर नहीं होगा, लेट मी आस्क, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट आई शुड गो विद द नेक्स्ट टूल। मैंने कल आपको मूव सॉरी कॉपी बता दिया था, द सेम एज मैं आपको यहाँ पे मूव, रोटेट एंड स्केल दिखा देता हूँ। तीनों कमांड, मूव, रोटेट एंड स्केल, क्योंकि ये सिंपल है, प्रोसेस सेम ही है एग्जैक्टली, आउटपुट सब अलग अलग है। कौन सा कमांड? मूव, रोटेट एंड स्केल। ओके, the command for move will be m enter, the command for rotate will be ro enter, and the command for scale will be sc enter। और ये तीनों आपको मॉडिफिकेशन टूल बार में मिलेंगे और रिबन में भी मॉडिफाई पैनल पे मिलेंगे। अब मूव का काम क्या लग रहा है आपको? कॉपी में तो ठीक है, हम डुप्लीकेट एंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं एक जगह से। मूव का काम है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके रखना। सेम एज कॉपी ऑपरेशन, मतलब जो प्रोसेस है सेम एज कॉपी, बट कॉपी में क्या है, रिजल्ट निकलता था कि कॉपी हो जाता था, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट रहता था, सोर्स जो एंटिटी था वो रहता था। बट मूव में क्या है ना, जो सोर्स ऑब्जेक्ट रहेगा वो चला जाएगा दूसरी जगह पे। दैट इज मूव। लेट मी शो यू। अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, अभी तक मैंने सर्कल ही पढ़ाया है तो मैं सर्कल का ही बात करूंगा। लेट द रेडियस इज 30, आई वांट टू मूव इट, लेट एम एंटर। और आप यहाँ पे देखना मॉडिफिकेशन टूल बार के अंदर मूव स्केल है, रोटेट है, मूव है। मूव, रोटेट, स्केल, कॉपी मैंने बता दिया था। इवन द सेम थिंग यहाँ पे है, मूव है, रोटेट है, एंड दिस वन इज योर स्केल। ओके, लेट मैं मूव दिखाता हूँ। द कमांड इज एम एंटर, the command is m enter। now it is asking same, select object, select करो, enter to finish the selection। now it is asking again the base point, कहां से पकड़ के उठाना है, एंड पॉइंट से, सॉरी सेंटर पॉइंट से पकड़ना है या क्वाड्रेंट से पकड़ना है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट पकड़ो। और अगर वैल्यू में जाना है तो वैल्यू में जाओ, अगर कहीं पे पॉइंट है वहां पे रख लो जाके। इफ आई वांट टू गो फॉर द वैल्यू, लेट आई विल गिव द वैल्यू इज 30, एंटर, सी ये 30 आ गया, ये यहाँ पे था, वहां पे चला गया, यहाँ पे आ गया। मूव में कोई डाउट है आपको? नहीं होगा शायद, सेम एज कॉपी। नेक्स्ट कम टू योर रोटेट। अब मैंने पोलर ट्रैकिंग में दिखाया था लाइन को ये करने के लिए 60 डिग्री में। अगर सपोज मेरे पास लाइन एक है यहाँ पे, लेट वही 100 का लाइन है, एंटर। अब मैं उसको रोटेट करना चाहता हूँ 60 डिग्री में, 60 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट मीन रोटेट करवाना, रोटेशन करवाना। और पूरा ड्राइंग भी रहेगा तो उसको भी रोटेट कर सकते हैं। मैं लाइन का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक पूरा प्रोफाइल है, उसको भी मैं रोटेट कर सकता हूँ। अब इसको क्या करना है, आरओ एंटर करना है, या फिर यहाँ से रोटेट ले सकते हो आप, और यहाँ से आप मॉडिफिकेशन टूल बार में जा सकते हो। लेट आई विल गो फॉर द रोटेट, एंटर। नाउ इट इज आस्किंग रोटेट द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मींस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, लेट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी एक साथ रोटेट करवाया जा सकता है, दैट मीन्स। And in order to finish the selections, you again need to press the enter key from your keyboard. Now specify the base point, about which point it will get rotated, about which point it will get rotated। अगर पॉइंट को दोगे वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा, बाकी का ऑब्जेक्ट उसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर लेगा। लेट आई विल गिव दिस पॉइंट एज द रोटेशन पॉइंट सो दैट दिस लाइन विल बी गो टू 60 डिग्री। लेट सिलेक्ट दिस पॉइंट। now what should be your rotation angle, what should be your rotation angle? Let I will give the value as 60 degree, enter। so now this line has been rotated at 60 degree angle। got it?
समझ में आया या डाउट रह गया? Yes, sir. Done. Thank you. Then I should go with the scale command. Obviously we have to scale it out. मैं print का जो scale बात कर रहा था ये वो नहीं है, drawing का scaling का बात कर रहा हूँ. अगर suppose मेरे पास एक circle है and let this will be 15 radius circle. I want to make it 30 radius circle. Scale out करना है यहाँ पे actual में. मीन्स ये अगर 30 हो जाएगा, इवन प्रिंट के टाइम में भी 30 का स्केल लेके हम करेंगे, 30 ही जैसे मुझे दिखे. तो ये स्केल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट एस सी एंटर, और आप स्केल कमांड में वहां पे चूज कर सकते हो. अगेन इट इज आस्किंग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स. देखो मैंने बोला था ना आपको, प्रोसेस सेम है. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर, बेस पॉइंट अबाउट कौन सा पॉइंट वो स्केल आउट होगा. लेट मैं सेंटर पॉइंट के हिसाब से स्केल आउट करना चाहता हूँ. नाउ व्हाट शुड बी योर स्केल फैक्टर? मैंने जैसे कि रेडियस 15 दिया था. इफ यू वांट 30 रेडियस देन यू हैव टू गिव द स्केल फैक्टर एज 2. अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मेरा तो 15 था, मैं 7.5 करना चाहता हूँ, देन इन दैट केस यू शुड हैव टू गिव 0.5 विल बी योर स्केल फैक्टर. लेट आई विल मेक इट 2 एंड एंटर. यहाँ पे आप मेजर करके देखोगे ना, आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे रेडियस में अगर जाके देखेंगे हम, इट विल शो मी 30. मैंने तो 15 लिया था, फिर स्केल आउट किया तो 30 हो गया अपने आप. एंड डोंट वरी अबाउट दिस डायमेंशनिंग. मैं सिर्फ चेक करवाने के लिए थोड़ा बहुत आपको दिखा दे रहा हूँ. यू कैन ट्राई इट आउट, बट एक क्लास पूरा होगा डायमेंशन का. So this is how you can you do this scaling of objects. Now come to your कौन सा बताऊं अभी, पॉलीलाइन बता देता हूं आपको, छोटा सा है, बता देता हूं पॉलीलाइन क्या है. लेट अगर पॉलीलाइन में जाएंगे, लेट गो टू पॉलीलाइन, और द कमांड इज pl enter. pl polyline, pl enter, or you can go to the draw menu, you will get polyline. Okay, polyline में अगर जाएंगे हम, now it is asking specify the start point. लेट मैं स्विच ऑन करता हूँ ऑर्थो को, आगे जाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, 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 एंड जस्ट प्रेस एस्केप. अब वैल्यू भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं दे सकते. इवन मैं लाइन कमांड में भी बना सकता हूँ इसको, ऐसा सेम स्ट्रक्चर कुछ भी मैं लाइन से ही बना सकता हूँ, हाँ या ना. तो पॉलीलाइन और लाइन Yes, में sir. डिफरेंस क्या है? सी, लाइन में जब बनाओगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 different entities are there. No line वहां पे है. But if you will do with polyline, you can just click here. It will act as a single line. It will act as a single line. So बहुत सारे जगह पे ऐसे ही सिंगल जरूरत होता है लूप के लिए. मैं इन फ्यूचर जब जाओगे पॉलीलाइन का यूज दिखाऊंगा वहां पे. बट अभी के लिए ये समझ में रखो कि पॉलीलाइन मीन्स मल्टीपल लाइन को लेके एक ही लाइन बनना होगा वो. So when I am going to select that particular line, whole the line is getting selected as a single line. But if I will do the same thing with the help of line command, then each and individual line segments are different entities. Basic difference पता चला? Okay. Yes, sir. Now if you will go to polyline again, and if you will just start the point, you will get some sub options. Do remember, whenever you will see something in square bracket during your command line, then those are called the sub options. See, it is quite difficult to teach you whole AutoCAD, but as per your syllabus and maximum requirement, I will do that. क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको स्क्वायर ब्रैकेट में जो होगा वो सब ऑप्शन से. सो आप अभी सभी सब ऑप्शन मुझे पूछने मत लग जाना. जो जो जरूरत है, जहां पे जरूरत है, मैं आपको बताते जाऊंगा. Once you will finish the training, you can explore more things. Are you getting my point? क्योंकि नहीं तो फिर जो सिलेबस रहेगा ना वहां से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे फिर.
ओके, आई विल टेल यू हाउ टू लर्न ऑटोकैड मोर। जो ज्यादा से अगर ज्यादा आप जानना चाहते हो, मैं आपको प्रोसेस बताते जा रहा हूँ, इसलिए फ्लाई आउट मेनू क्या है बता दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो सब ऑप्शन से। बहुत जगह पे आप जाओगे, हाँ पीएल एंटर लगा लो, ए लगा लो, या ये एंटर कर लो, बट क्यों क्यों हम ए एंटर दबाएंगे, क्यों हम ये करेंगे उसके अंदर? तो ये सभी ऑप्शंस में क्यों दिया गया है और कैसे करना है मैं बता दूंगा आपको। सो लेट पॉलीलाइन में जैसे फर्स्ट ये नॉर्मल मैंने बता दिया, पॉलीलाइन में क्या है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन आया है, दोज आर कॉल्ड द सब ऑप्शंस। अब सब ऑप्शन के अंदर जाएंगे कैसे हम, ध्यान से सुनना आप, सब ऑप्शन के अंदर जाएंगे कैसे और सब ऑप्शन को एक्टिवेट कैसे करना है हमको। द फर्स्ट मेथड, आप डायरेक्टली यहां से क्लिक कर सकते हो। आर्क में अगर जाना है आर्क को क्लिक कर सकते हो, हाफ विड्थ में जाना है हाफ विड्थ को क्लिक कर सकते हो, लेंथ में जाना है लेंथ में क्लिक कर सकते हो, विड्थ में जाना है विड्थ में क्लिक कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे देखना कुछ जो लेटर्स हैं वो ब्लू कलर्स में लिखे हैं। पहले क्या होता था, ओनली कैपिटल लेटर को ही हाईलाइट किया जाता था, बट अभी देखो सभी जो कैपिटल लेटर्स हैं, ये जो भी लेटर्स ब्लू कलर्स में लिखे हैं, दिख रहा है आपको कुछ लेटर्स ब्लू कलर में? अब अगर सपोज आर्क के अंदर जाना है तो ए एंटर कर लोगे तो हो जाएगा, विड्थ के अंदर जाना है तो डब्ल्यू एंटर करोगे तो चला जाएगा, आप चलो जाएगा। सो लेट पी एल एंटर फर्स्ट पॉइंट, देन डब्ल्यू एंटर फॉर विड्थ। सो ये है ऑप्शन विड्थ। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो और डब्ल्यू एंटर कर सकते हो विड्थ के लिए। मैंने दो मेथड बताया आपको, डायरेक्ट क्लिक एंड द कमांड्स, सब ऑप्शंस जो ब्लू कलर में रिटर्न है। और डायरेक्टली आप उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक कर लो, यू विल गेट द सेम ऑप्शंस, यू विल गेट द सेम ऑप्शन। let if I will go for the let I will go, what I will do, this is the line command. Now I will go for arc option, so it will create directly arc in between the lines. You will able to create directly arc in between lines. Enter. Okay, now if I will go with the half width, let I will go to the polyline start point, let I will go for the width option. Now it is asking specify the starting width. Let start width will be 0. Enter. What should be your end width? What should be your end width? End width will be let 5. Enter. And now what should be the length? Let's see. Start width is your 0. Here the it is point out, means ये देखो शार्प हो गया पूरा, क्योंकि एंड विड्थ जो है 5 यूनिट है। लेट ये 50 लेंथ का लाइन में बनाऊंगा। एंटर। सो ये देखो ये विड्थ 5 है और ये 0 है यहाँ पे। सो इन फ्यूचर एनी कहीं पे भी आपको ऐसे कुछ प्रोफाइल बनाना है या ऐसे कुछ शेप चाहिए तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन, पॉलीलाइन ऑप्शन। और उल्टा भी कर सकते हो, स्टार्ट विड्थ आपका 10 रहेगा, 5 रहेगा और एंड विड्थ आपका 0 रहेगा। एनीथिंग यू कैन डू। सेम अगर मैं पॉलीलाइन में जाऊंगा, स्टार्ट पॉइंट, लेट आई विल गो फॉर द विड्थ ऑप्शन, लेट स्टार्टिंग विड्थ विल बी योर 5, enter, end width will be a 0, enter, see. Let give the length as 50, escape, done. You will get the same thing. Let again go for the polyline option, start point. Now, instead of going to the width option, I should go with the half width option. Half width in the sense you have to give the half value. Instead of 5, you can go for the 2.5. That's the different. Let's see. If we'll go to the half width option, it is asking specify starting half width. Let starting half width will be 0. Enter. And end half width, let it will be 2.5. Enter. You'll see. You'll get the same thing. Length will be 50. And so in half width, you have to provide the half of the length. Again, polyline, start point. Let if I'll go for the length option, specify the line of length of line. Let this is 50. Enter. Only the length. If you'll go to the arc, then you can go to the arc. So this is here. Let again you want length. Let I will go for the length option, line option.
Length is only, you can go with the length only linearly. So this is all about polyline. Done? Clear है? Yes, sir. ओके, लेट उसके आगे जाएंगे तो शायद मुझे थोड़ा सा और लेट आई विल टेल यू अबाउट द मिरर कमांड ऑल्सो. हमारे पास कुछ टाइम है, लेट हम मिरर कमांड के बारे में बता देंगे. So mirror command is nothing but mirroring an object. If you are having any bisymmetrical object, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का बात करेंगे, वो बाइसिमेट्रिकल है. अब पूरा बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है. अगर हाफ ऑफ बॉडी बना लोगे तो आधा बॉडी को आप मिरर कर सकते हो आप, तो आपके आधे मेहनत में पूरा ड्राइंग हो जाएगा. दैट इज द व्हाई वी कैन यूज मिरर कमांड. इवन उसका एग्जांपल्स मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ. बहुत सारे ड्राइंग्स होंगे आपके पास वर्कबुक में भी जिनमें आप मिरर कमांड यूज कर सकते हो. इवन अभी तक मैंने जो किया, हमने जो जो मैंने दिखाया था, आई सेक्शन का बात कर लो आप, ई सेक्शन का बात कर लो, या फिर बड़े बड़े ड्राइंग्स भी जो हैं, लेट आई विल शो यू. लेट्स सी, कैन यू सी दिस फिगर? इवन दिस फिगर ऑल्सो, आप मिडिल से अगर हाफ कर लोगे तो ये आधा कर लोगे तो ये पूरा हो जाएगा. कल मुझे कोई पूछ रहा था ना कि ये कैसे करेंगे करके, ये वाला का, ये वाला नहीं, ये वाला पूछ रहे थे, ये वाला. इवन दिस ऑल्सो यू कैन डू हाफ, यू विल गेट द फुल. वो डिपेंड करता है आप कौन सा ड्राइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या कौन सा कोई पर्टिकुलर जगह को आप मिरर करना चाहते हो. इवन एवरीथिंग यू कैन सी दिस वन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ए मिरर वन. आप सेंटर लाइन से आधा बना लो और आधा को मिरर कर लो. हियर ऑल्सो सेम थिंग, हाफ से यहाँ पे हाफ बना लो और बाकी हाफ को यहाँ पे मिरर कर लो. मोस्ट ऑफ द केसेस हियर ऑल्सो आप देख लो ना, ये वाला मिरर कर लो आप, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, इसको एक साइड में करो, दूसरे साइड में मिरर कर लो. These are examples of mirror commands. आपको दोनों साइड करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो इजीली मिरर. सो लेट मैं यहाँ पे आपको सिंपली दिखा देता हूँ मिरर कैसे करना है. बाकी एप्लीकेशन आप खुद से ट्राई करना, जो नहीं हो पाएगा मुझे बताना, मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगा आपको. सो लेट टाइम था इसलिए मैं सोचा कि मिरर कमांड आपको कंप्लीट कर लो. तो मैं आई सेक्शन बना के दिखाता हूँ, एक आई सेक्शन का. लेट आई सेक्शन में क्या था, ये 100 था मेरा बेस. लेट मैं यहाँ पे 50 ही ले रहा हूँ. नीचे लेट 20 ले रहा हूँ. लेट यहाँ पे 40 एंटर, और नीचे 100, और यहाँ से अगेन 40, नीचे 20, एंड अगेन द बेस विल बी 50 एक्स. सो ये मेरा हाफ ऑफ द आई सेक्शन है. इफ आई वांट टू गो फॉर डू मिरर, मुझे अगर मिरर करना है, देन आई कैन गो फॉर द मिरर कमांड हियर, और इफ यू विल गो टू द मॉडिफिकेशन टूल बार यू विल गेट द मिरर, और MI will be the command line for mirror, the first two letter MI. So now you can see if I will give MI enter, ये क्या पूछेगा, select objects, किसको किसको मिरर करना है. So now select this, select this, select this, select this, this, and press enter in order to finish the selection. Now it is asking specify the first point on mirror line. किस लाइन के अबाउट में ये मिरर होगा. लेट लाइन मीन्स with the help of 2 points only you can define the line. No need to create a line or to select this. By means of 2 points, providing 2 points, let this will be my first point of mirror line, and this will be my second point of mirror line. If you will define it, and now it is asking erase the source object, yes or no. Source means whatever I have selected. If you will just create, when click on yes,
means it will get deleted and you will create here. If you will go for no, both will be there. See, this half is different, this half is different. This is mirror command. Even I'm going to tell you, suppose I'm having a line here at a certain distance from this. At a certain distance from this. I will go for the mirror command mi enter. The same way I will select all the lines. Enter. Now it is asking select the specify the first point. Let anywhere you can specify the first point. It's not that you have to just choose this start point and end point. Anywhere on these two lines, these lines, आप कहीं पे भी ये line के ऊपर दो points ले लो, it will define you the same line. Irrespective of the end points, you can take any 2 points. आप ले भी सकते हो end points को और कहीं पे भी 2 points को आप define कर सकते हो. No. So exactly ये जितने distance में है ये line से उतने ही distance में ये आपको एक mirror image create कर लेगा. And both the distance will be same. Got it? Yes, sir. अब एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूं. जब हमने सिलेक्शन कर रहा था ना, एक एक करके सिलेक्शन कर रहा था क्योंकि मैंने बताया नहीं था सिलेक्शन मेथड्स. हमारे पास 2 सिलेक्शन मेथड्स है जिसके साथ आप इजीली, 2 नहीं बहुत सारे सिलेक्शन मेथड्स हैं, बट 2 मेथड्स बहुत ही पॉपुलर है. जैसे ही आप कहीं पे क्लिक करते हो, जैसे कि आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करना है या जो करना है, आप ऊपर की तरफ जैसे कि माउस को मूव करोगे ना, इट विल बी शोन विथ ए ग्रीन विंडो. आपको एक ग्रीन विंडो दिखाई देगा. ये ग्रीन विंडो जो भी एंटिटी को टच करेगा भी तो वो सिलेक्शन हो जाएगा. सी, अगर सिर्फ टच भी कर लेगा देन इट विल गेट सिलेक्टेड. दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस सिलेक्शन. क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस सिलेक्शन. कहीं पे भी क्लिक करो, ऊपर की तरफ विंडो को लेके चलो, सिलेक्ट कर लो. जैसे कि मुझे अभी उसको मूव करना है, एम एंटर. अब एक एक सिलेक्शन तो अच्छा है, मैं पूरा को सिलेक्शन कर लूं. टच भी कर सकता हूं, उसके अंदर भी ला सकता हूं, कोई इशू नहीं. एंड एंटर. सी, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट. ये पूरा का पूरा आ गया. अनदर वन इज दैट आप कहीं पे भी क्लिक करो और नीचे की तरफ आओ, एक ब्लू विंडो आएगा. दिस इज कॉल्ड योर फैन सिलेक्शन. FENCE, फैन सिलेक्शन. और इस फैन सिलेक्शन में क्या है ना, जब तक ये पूरा विंडो के अंदर नहीं आएगा इट विल नॉट गेट सिलेक्टेड. अब देखो विंडो के अंदर 2 ही वर्टिकल लाइंस आए हैं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन. अब देख लो, यही 2 सिलेक्शन हो सकते हैं. बाकी इसको अगर टच भी किया है तो सिलेक्शन नहीं होगा. पूरा सिलेक्शन करने के लिए पूरा कंप्लीट उसके विंडो के अंदर आना चाहिए. और अगर ऐसे क्लिक कर देंगे, देखो ये 2 सिलेक्शन हुआ है. बाकी ये सभी टच तो किया था बट सिलेक्टेड नहीं हो पाए. बट यहाँ पे अगर जाओगे, ये देखो टच किया है जो भी, वो सिलेक्शन हो जाएंगे. ये लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है. ये लाइन और ये लाइन सिलेक्टेड नहीं है. सिलेक्शन करना है, उसमें क्लिक कर सकते हो, इसमें क्लिक कर सकते हो. डन. सो आज के लिए इतना ही. आप प्रैक्टिस करो. मे बी आप बहुत सारे ड्राइंग से भी कर सकते हो. जितना चाहो ड्राइंग कर लो. तो जो भी डाउट्स होगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे फिर, और आगे बढ़ेंगे. डन. ठीक है सर. ओके देन, बाय, गुड नाइट. ओके सर, बाय, गुड नाइट. क्लासेस क्लियर है आप लोगों को? और आपको मेथड थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है या ठीक नहीं लग रहा तो मुझे बता देना एक बार. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर, इट्स ओके. ओके. ओके देन, फाइन. बाय, गुड नाइट.